انتہائی قابل احترام سائن جناب محمود شاہ صاحب اور سندھی دانشور خواتین و حضرات، خوشی اس بات کی ہے کہ سندھ کے دانشوروں کو آج ہم سن رہے ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے ان میں کافی پختگی ہے۔ میں کوشش کروں گا، کافی وقت ہو گیا ہے، اپنے آپ کو صرف اور صرف کانفرنس کے 1-2 ایشوز پہ مرکوز کر لوں۔ جیسے سب ساتھیوں نے کہا، میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا کہ یہ بیسیکلی ایک اپروچ ہے، یہ ذہنی کیفیت ہے کہ کس طرح جو یہ پوسٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو سندھ اور بلوچستان سے کاٹ کر کے کوئی اور چیز بنائیں۔ اور یہ سازش ہر فوجی حکمران نے کی۔ مشرف نے تو واضح کہا تھا کہ میں گوادر کو جو ہے نا فیڈرل ادارہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ عوام سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں۔ اب جو ان لوگوں نے نیا شوشہ چھوڑا، یہ 2 شوشہ ہیں۔ دوستوں نے اس کی کانسٹیٹیوشنل تفصیل بتائی۔ میں چونکہ 18ویں ترمیم کا ایک حصہ رہا ہوں، میں ایک چیز ذرا واضح کر لوں کہ جو لینڈ تھا 12 ناٹیکل میل تک جو سمندر تھی، وہ 18ویں ترمیم سے پہلے قومی وحدتوں کا تھا۔ 18ویں ترمیم میں جو وہاں تیل اور گیس جہاں کہیں دستیاب ہوتا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا۔ اس میں ہم نے ترمیم کی، 50% کیا، لینڈ اور 12 ناٹیکل میل تک یہ فیڈریٹنگ یونٹ کے حصہ تھے۔ دوسری اس کنفیوژن کے بھی وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے ناپا تولا نہیں ہے، ایک اور نیا کنفیوژن ہم کریٹ کریں کہ واقعی یہ جو جزیرے ہیں یہ 12 ناٹیکل میلز کے ہیں۔ اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے۔ جو جزیرے سندھ کے ہیں وہ سندھ عوام کے ہیں، 12 ناٹیکل میلز کے اندر ہے۔ یا کوئی اور پیمانہ لائیں گے، ہیرا پھیری میں تو ماہر ہیں، لیکن جو بھی پیمانہ رکھیں گے ان کو ہم نہیں لیں گے، جو بھی پیمانہ رکھیں گے۔ یہ سندھ اور بلوچستان کے ہزاروں سال اس مٹی کے حصے ہیں۔ یہاں بہت سے زوراور آئے، لیکن ان لوگوں نے سندھ اور بلوچستان پختونخوا کو قبضہ وہ نہیں کر سکے۔ اب یہاں پہ چاہے پیدا ہو یا اس سے قبل پاکستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی، اس پہ بھی ہم نے کافی پروٹیسٹ کی کہ بھائی آپ پاکستان کے آئین کو تو ویسے ہی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو آلریڈی سندھ میں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ آپ نے کون سے قانون کے تحت یہ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی؟ لیکن بنیادی بات وہی جو سوچ کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ہم انکروچ کر لیں۔ مجھے بہت افسوس ہوئی جب ہم 18ویں ترمیم میں جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جو کوسٹ ہے، جو پورٹ ہیں، وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں، وہ فیڈرل حکومت کے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بڑے پارٹیوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہتے نہیں جی یہ تو وفاق کے، میں نے کہا وفاق کے تو نہیں ہے، پورٹ تو میونسپل کارپوریشن کے بھی ہیں دنیا میں۔ تو یہ پورٹ، اب ہماری پورٹ کا کیا ہے؟ ہم اور آپ اور پختون جو ہے نا جتنے روئیں گے
वो हमारी रोना धोना खत्म नहीं होगी। हमारे पोर्ट ग्वादर पोर्ट में क्या है, 93% चाइना, 7% फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान 0, कोई रेवेन्यू हमें नहीं मिलेगा। अब इस पोर्ट से हमें क्या फायदा है? जमीन चला गया, हर जगह जाओ कोई तो कोई लिखा हुआ है, कहीं पे एनएलसी लिखा है, कहीं पे एफडब्ल्यू लिखा हुआ है, कहीं फलाना बिल्डर है, कहीं फलाना बिल्डर है। अब मैं समझता हूं कि इसमें हमें संजीदगी की जरूरत है। हमें जितनी भी बातें हम करते हैं वो सब सच है। एक चीज का फुकदान है बदकिस्मती से, जो हम कौम दोस्तों पे हमेशा एक तनकीद है कि हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब इसकी क्या रीजन है? ये उस वक्त क्यों मुनज़्ज़म थे? अगर 1957 में नेप बन जाता है और नेप में ये जो हम बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी पार्टियां इस वक्त यहां बैठी हुई हैं, वो सारे नेप के हिस्से थे। वो उस वक्त इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई कि उसको पाकिस्तान के इलेक्शन जीत रहा था। आज इसलिए एक तो तकसीम ने हमें बर्बाद की, दूसरी बात तो ये हुई कि हमने अवाम को शायद हमें खामियां दी या रियासती पॉलिसियां इतनी जोरावर थी कि हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म नहीं कर सके। जब तक हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म नहीं कर सकेंगे ना, हम जलसे करें 100 आदमी नहीं है, अगर हर जलसे में हम 1-1 लाख आदमियों को जमा कर सके, ये तमाम पीड़ा मीडा सारे जो है ना एक ही रोज में जो ना खत्म होंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि रियासत ने कौमों के अंदर, तबकात के अंदर, अदारों के अंदर, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी नफरतें क्रिएट की हुई हैं कि हम उनको नहीं समझ रहे हैं। आज इसी तरह जो सिंध के वो हैं, हमारे 2 बड़े मशहूर वो हैं कि अफ्तलार जजीरा है बहुत बड़ा, जहां हमारे फिशरमैन जाके वहां पे पसीनी के करीब है। एक चरना आइलैंड है यहाँ पे नजदीक है आपके, उसमें सुरमियानी और इनके पास। अब वहां पे चरना आइलैंड जो वहां पे WWF वालों ने इसको लिखा है कि मैरीन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और इसको उसमें जो डॉल्फिन है या दूसरे जो ना आदि जानवर हैं वो वहीं पे होते हैं। उसको कहते हैं जी हम वहां पे जो है ना आयल टर्मिनल लगा देंगे। अब वहां के जो मछेरे हैं, ये पूरा गड्डानी है, सोनमियानी है, डाम है, गोट गुलाम मोहम्मद है, ये तो सारे जो है पिट जाएंगे। भाई अगर आपको आयल रिफाइनरी लगाने कहीं और लगा दो, ये क्या बात है कि आप जाके जो है ना आयरलैंड के अंदर लगा देंगे। लेकिन चूंकि नीयतें ठीक नहीं है और डे 1 से उनकी नीयतें ठीक नहीं थी, नया शोशा छोड़ा है। शोशो क्या अमल मैं गया हूं अभी 3-4 दिन पहले, मैं ग्वादर में था। तमाम ग्वादर शहर को फेंसिंग कर रहे हैं। 2 गेट होंगे, एक कराची की तरफ से, एक पिशकान की तरफ से, और वो बहुत बड़े जो ना वो बना रहे हैं। जो भी जाएगा गाड़ी के साथ वो हाईली स्कैनर लगेंगे और उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा। अब ये दुनिया में कहीं पे बॉर्डर पे फेंसिंग होती है, किसी शहर का हमने फेंसिंग तो नहीं सुना है। किसी ग्वादर को हम सेफ सिटी बनाएंगे। भाई अगर आपको ग्वादर को सेफ सिटी बनाना है, अनविजिबल तरीके हैं, आप सेफ सिटी बना दें। वैसे उधर 300-400-4,000 कैमरे लगे हुए हैं। चाइनीज के पास तो कोई लोकल आदमी भी नहीं जा सकता है। आपके पास तो बंदूक है, आपके पास कोई नहीं आ सकेगा। ग्वादरियों को तो कोई नहीं मारता है, अगर कोई मारता है तो मारने दो।
बजाय इस हिसाब से। और उसमें गांव तकसीम है, एक गांव यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। अब इसके मस्जिद उधरी है, स्कूल इधरी है, इसको 15 किलोमीटर चल के अपने रिश्तेदार के पास जाना पड़ता है। अब कल ग्वालियर के लोगों ने जिरगा किया, उसको रिजेक्ट की। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि हम ये जो सिंध और बलूचिस्तान के जो जजीरे हैं और ग्वालियर की फेंसिंग है, तो हमने कहा भाई अगर खतरा है तो वजीर आजम को है, सदर को है, जाके वहां फेंसिंग करो, इस्लामाबाद को फेंसिंग करो, जाके किसी और शहर को। हमें तो कोई खतरा नहीं है। चाइनीज प्रोटेक्टेड है, उनके पास। मैं कम से कम मुल्क का वजीर आला रहा हूँ बलूचिस्तान का, मैं भी नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता हूँ। उस जमाने में जब हम थे, मैं और ज़ियारतवाल भी कभी कभार जाके ब्रीफिंग देते थे, पता नहीं असली जगहों पे ले जाते थे कि नहीं, वो भी हमें पता नहीं था। तो अब हम अपनी सरजमीन पे अब ये कहते हैं कि ग्वादर वालों को हम अलग शनाख्ती कार्ड देंगे, लोग। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये नफरतें पैदा कर रही। लेकिन उनको इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उनका जो बयानिया है कि ये मुल्क सिक्योरिटी स्टेट है, इसमें हम डंडे के जोर पे हुकूमत कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ एक कौम है, वो है पाकिस्तानी। हम लाख चीखें कि जी पाकिस्तानी अभी तक कौम नहीं, आपने कोई ऐसी अच्छी काम नहीं की कि लोग अपनी कौमी वजूद को खत्म करके पाकिस्तानी कौम बन जाए। ये कसीरुल कौमी रियासत है, कौमी अपनी सरजमीन पे हजारों साल रह रहे हैं। पख्तून हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं। अब इसको तस्लीम करना उसके लिए जो है ना नज़ीर है, पाकिस्तान को चैलेंज करना है। आप जोर देते हैं, हमारे मशर जो है ना जोर देते हैं जी माइन को मानो, वो आइन को भी नहीं मानते। भाई जो कुछ आइन के अंदर है उसको तो मान लो। अब ये उस वक्त जोरावर है जब तक हम कमजोर है। अगर हमने अपने अवाम को मुनज़्ज़म किया, लेकिन अब सिंध एक्शन कमेटी ने अगर अवाम को मोबिलाइज की, इसलिए जो हम यहाँ कहते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टियों के पास खुद है क्या, अगर हम अवाम को मुनज़्ज़म करें, हम अपनी चीजों को रोक सकते हैं। अदरवाइज ये एक एक करके जिस तरीके से हमें, जैसे मैं तो अभी 2-3 दफा गया हूँ, सही जो सजा सिपाही कह रहा है, मतलब आप कराची से लेकर हैदराबाद की राइट लेफ्ट में कोई ऐसी जमीन नहीं रहेगी है, सब बाढ़ के अंदर है, लाखों एकड़ जमीन है। हमारे यहाँ आप यहाँ से निकल जाएं, पूरा ओरमाडा, पूरा पश्चिमी, पूरा ग्वादर, मैंने आके इनको कैंसिल किया, दूसरे लोग आके फिर बहाल कर लेते हैं। हालांकि मैंने पश्चिमी सब डिवीजन के तमाम लैंड ग्वादर की अच्छी खासी कैंसिल किए थे। तो इसलिए कि अवाम कमजोर है, अवाम को हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि सिंध के जो दानिश्वर हैं वो अपने केस को कम से कम बलूचों से ज्यादा बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन यह है कि वो यूसुफ अजीज मक्सी का शेर है कि फकत दानाइयों से ही मुरादें भर नहीं आती, जरूरत है कि दानाओं में दीवाना हो जाए। आपको बात यह है कि अगर हम सियासी कारकुन इस हद तक जाएंगे कि हम अपने पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, सराइकी और पंजाब अपनी वतन की, अपनी जुबान की, अपनी कौमी तशक्कुस की दफा कर सकते हैं, तो कोई इसको जो है ना वो नहीं करेगा। नहीं तो यही है कि रोजाना कोई ना कोई फसाद वो क्रिएट करते हैं और हमें डिवाइड करते हैं। थैंक यू। मैं और आप तमाम दोस्तों की मशहूर हो सकते हैं।